اگر ہوش میں بیٹھے ہیں دماغ حاضر کر کے بیٹھیں گے تو بہت کچھ سنا کر کے جاؤں گا. میرا دعویٰ ہے پہلے سے بتا دے رہا ہوں. سنیں توجہ, مکمل توجہ, بھرپور توجہ ہے نا, توجہ چاہیے کہ اے عالم و نجوم و جواہر کے کردگار. توجہ, آپ بولیں گے تو میں بھی بولوں گا, بے شک نہیں تو میں بھی نہیں بولوں گا. اگر آپ بولیں گے تو بولوں گا. اے عالم و نجوم و جواہر کے کردگار, مجھ کو بھی گرے شام و سحر کھولنا سکھا. اے عالم و نجوم و جواہر کے کردگار, مجھ کو بھی گرے شام و سحر کھولنا سکھا. میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں, میں بھی پلکوں پہ چاند تارے سجا سکوں. میزان خصم مجھ کو کوہر تولنا سکھا. اب زہر ذائقے ہیں زبان و حروف میں, سنیے گا, اب زہر ذائقے ہیں زبان و حروف میں. اب ان ذائقوں میں اسم اعظم گھولنا سکھا. کیا کہنا ہے, اب زہر ذائقے ہیں زبان و حروف میں, بے شک اب ان ذائقوں میں اسم اعظم گھولنا سکھا. اور دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں, دل مبتلا ہے کب سے عذاب سکوت میں. تو رب نطق و لب ہے مجھے بولنا سکھا. اور تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے, تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتہا تو ہے. ازل سے ابد بے ابتدا بے انتہا تو ہے. اور تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن, بے شک بے شک تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے. تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے ہم سب کا خدا تو ہے. تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن, بے شک تو واجب ہے تیری تعریف ممکن سے ہے ناممکن. تو ہی رب العلا ہے عقل سے ماورا تو ہے. اور توجہ, مجھے حیرت ہے کس طرح سے تیرا انکار کرتے ہیں, بے شک مجھے حیرت ہے کس طرح سے تیرا انکار کرتے ہیں. جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو. سبحان اللہ. بھوانی گنج والوں سمجھنا, مجھے حیرت ہے کس طرح سے تیرا انکار کرتے ہیں. جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہیں جلوہ نما تو ہے. کیسے کہ خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے. بے شک بولیے بولیے, بولو بولو, جو ناراض بیٹھے وہ بھی بولے, بولے. خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے. خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں میں نے دیکھا ہے. خدایا تیرا نور چمکتا ہے تاروں میں میں نے دیکھا ہے. خدایا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں میں نے دیکھا ہے. اور نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا, نام رٹتا ہے تیرا باغ میں پتا پتا. سنگریزے تیرا دھم بھرتے ہیں کوثاروں میں میں نے دیکھا. سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں میں نے دیکھا ہے. اور دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش, دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش. تیری معصوم ثنا خوانی ہے گہواروں میں میں نے دیکھا ہے. مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. بھوانی گنج والوں, اگر آپ کو ہوش و خرد ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو تو جواب دیجئے گا. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے, اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. قرآن کے پاروں میں, آقا کے اشاروں میں, معصوم پیاروں میں, ایما کے سواروں میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. توجہ, اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. صدیق کی شفقت میں, فاروق کی ہیبت میں, عثمان کی عفت میں, حیدر کی شجاعت میں, مالک کی روایت میں, احمد کی درایت میں, صفیہ کی ثقافت میں, نعما کی فقاہت میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. سبحان اللہ. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. برکھا کے پواروں میں, ساون کی بہاروں میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. برکھا کے پواروں میں, ساون کی بہاروں میں, پودوں کی قطاروں میں, کوئل کی پکاروں میں. سبحان اللہ. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. برکھا کی پواروں میں, ساون کی بہاروں میں, پودوں کی قطاروں میں, کوئل کی پکاروں میں, ہر برگ گلستہ میں, ہر روئے درخشاں میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. شرشار دماغوں میں, ہر قلب کے داغوں میں, انگور کے باغوں میں. بے شک بولے, توجہ, جس نے دیکھا ہے وہ بولے. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. ہر لہن حجازی میں, ہر نقش مجازی میں, ہر حسن ترازی میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. کوثار میں, گنبد میں, میناروں میں, کوثار میں, غاروں میں. اے مولا میں نے تجھے دیکھا ہے. پھر کیوں نہ کہوں,
फिर क्यों ना कहूँ कि सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है। सुभान अल्लाह। सुनो, बात कर रहा हूँ तौहीद की, बात कर रहा हूँ जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में गए थे। बात कर रहा हूँ उस दीन की, उस तौहीद की जिसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में खानदान भी लुटा दिया। फिर क्यों ना कहूँ कि सबसे बढ़कर मुझे जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है। मुझे देखिए मूड बनेगा तभी मैं बोल पाऊंगा, पहले बता रहा हूँ खामोश मजमे में बात करने वाला नहीं हूँ मैं, ये सीधी सी बात है। आप बोलेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत देर तक बोलूँ, थोड़ा भी सुना के जा सकता हूँ। सुने, फिर क्यों ना कहूँ कि मुझे सबसे बढ़कर जिससे है मोहब्बत तू है, मेरी तौहीद परस्ती की हकीकत तू है, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा माबूद है तू, मेरा ईमान, मेरी दीन, मेरी शरीयत तू है। बेशक। फिर किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, फिर किसी और को मुश्किल में पुकारूं क्यों कर, जब रगे जां से भी नजदीक वदीयत तू है। बेशक। जब रगे जां से भी नजदीक वदीयत तू है। तू ही अव्वल, तू ही आखिर, मेरी चाहत, मेरी राहत, मेरी कुव्वत तू है। सुने, अब यहां से तवज्जो चाहता हूं मैं, अगर हकीकत में आप आशिक़े रसूल बैठे हैं, कि था किसको यकीन, था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम। बेशक। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा, मेराज का दूल्हा होगा। था किसको यकीन कि हलीमा की ये गोदी का यतीम अर्श तक जाएगा, मेराज को दूल्हा होगा। और शबे असरा मेराज की रात, शबे असरा एक बार जगाने के लिए दिले जिब्रील भी सौ जान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो उंगुश्त, मेरे आका की उंगुश्त उंगली, सोचता हूँ वो उंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूँ वो उंगुश्त जब उठी होगी, चांद भी फलक पे किस वजद में तड़पा होगा। सोचता हूँ वो उंगुश्त जब उठी होगी, और मेरे आका जहाँ बसते हैं, मेरे आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। अल्लाह हम सबको मदीने ले जाए। जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। मेरे आका की जो बस्ती है मदीना उसको कहते हैं। जहाँ रहमत बरसती है मदीना उसको कहते हैं। जहाँ वो गुंबदे खजरा किसी इसकी दीद की खातिर भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं। भरी दुनिया तरसती है, मदीना उसको कहते हैं। और मेरे जुमले की हिफाजत कीजिएगा, जाये ना होने पाए। बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए। कब्रिस्तान को बस्ती नहीं कहते, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर रहा जाए। कब्रिस्तान में नहीं रहा जाता, बस्ती उसे कहते हैं जहां पर बसा जाए। बस्ती उसे कहते हैं जहां पर रहा जाए। अरे बस्ती उसे कहते हैं जहां पर जिया जाए। और मदीना मेरे आका की बस्ती थी नहीं है, इसीलिए तो हर आशिक जाया करता है, हर आशिक जाया करता है। आशिकीन जाते हैं, जो ना जाए वो उसकी बदकिस्मती है। आशिक जाया करते हैं, मदीना मेरे आका की बस्ती है। और कोई माने या ना माने, जो कहते हैं कि हमें नहीं जाना, सुन ले, कोई माने या ना माने लेकिन जमाना देखता है। कोई ना माने, जमाना देखता है। जमीनों आसमान देखते हैं, चांद सितारे देखते हैं, कायनात का जर्रा जर्रा देख रहा है कि आका के दीवाने मदीना जाया करते हैं। कोई माने या ना माने, अरे देखो अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। कोई माने या ना माने, देखो देखो उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। उस्मान बनु कुरैश को, बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। अरे बिलाल हबशा को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पर। अरे इतना ही नहीं, जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबो बला हजरत अल्लामा मुफ्ती रिजवान अजीज साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशा। जिब्रील सिदरा को छोड़कर मेरे आका के दरवाजे पर। अब सुनिएगा,
حقیقت میں سنیے گا ہم کتنے خوش نصیب ہیں، میرے آقا کی عظمت کیا ہے اور پھر میرے آقا کے غلاموں کی عظمت کیسی ہوگی۔ سنے کہ ساری دنیا میرے آقا کے دروازے پر، اور سنے علماء ہو تب، اتقیاء ہو تب، صلحاء ہو تب، نجباء ہو تب، صوفیاء ہو تب، آپ ہو تب یا میں ہو تب، علماء ہو تب، اتقیاء ہو تب، نجباء ہو تب، صحابہ ہو تب، انبیاء ہو تب، جنت کے دروازے پر، جنت میرے آقا کے دروازے کیا کہنے ماشاءاللہ، سبھی جنت کے دروازے پر، جنت میرے آقا کے دروازے پر۔ بے شک کیسے آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پر جو عمر سو رہا ایسا تھا ویسا تھا۔ حضرات گرامی سنیے، کیونکہ مجھے بات کرنی ہے اور بات اٹھانا بھی بہت دور سے ہے اور لے جانا بھی بہت دور تک ہے۔ مسئلہ یہ ہے حضرات گرامی، یوں تو آپ دیکھیں گے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں سبھی میرے آقا کے مرید ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ سبھی مرید ہیں، لیکن حضرت عمر کی ایک اور خصوصیت ہے کہ آپ مراد رسول بھی ہیں۔ آقا نے آپ کو مانگا ہے، آقا نے آپ کو مانگا ہے، رو رو کر کے مانگا ہے، کعبے کا غلاف پکڑ کر کے مانگا ہے، تہجد کے بعد مانگا ہے، دعا کر کے مانگا ہے۔ ایسے نہیں، میرے آقا کا مشن تھا، میرے آقا کی آرزو تھی، 3 آرزو تھی، سنیے گا۔ پہلی آرزو، میرا مشن پوری دنیا میں پھیلے، بے شک اسلام پوری دنیا میں پھیلے، میرا مشن پوری دنیا میں پھیلے۔ آقا کی آرزو تھی چپا چپا پھیلے، نگر نگر پھیلے، کریا کریا پھیلے، شہر شہر پھیلے، ملک ملک پھیلے، پوری دنیا میں پھیلے۔ دوسری آرزو تھی میرا رہنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری گھر کی زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی پھیلے، میری زندگی کے حالات پھیلے۔ تیسرا مشن تھا کہ میری شہادت ہو جائے، میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ نے تینوں مشن پورا کیے، بے شک سبحان اللہ، تینوں مشن پورا کیے۔ میرے آقا کی خواہش تھی میرا مشن پھیلے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری دنیا میں پھیلے۔ جو اسلام لے کر کے میں آیا، جو دین لے کر کے آیا، جو مذہب لے کر کے آیا، جو طریقہ لے کر کے آیا، پوری دنیا میں پھیلے۔ اللہ فرماتا ہے، سنو، اللہ کہتا ہے ارے ہو کیسے سکتا ہے محبوب تیرا مشن نہ پھیلے۔ میرے آقا کی خواہش تھی جو بدر میں نے اعلان کیا تھا وہ مشن پھیلے، جو جنگ وحد میں اعلان کیا تھا وہ مشن پھیلے، میرے دندان مبارک شہید ہوئے تھے میرا مشن پھیلے، میں نے ہجرت کی کیوں میرا مشن پھیلے، تبوک کے موقع پر گیا کیوں میرا مشن پھیلے، میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے کیوں تاکہ میرا مشن پھیلے، میرا مشن پھیلے۔ میں نے پتھریں کھائی، میں نے مار کھائی، کچھ نہیں بولا، میرے کانٹے میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میں کچھ نہیں بولا کیوں تاکہ میرا مشن پھیلے۔ اللہ فرماتا ہے ہو کیسے سکتا ہے میرے محبوب کا مشن نہ پھیلے، میرے محبوب کی تعلیمات نہ پھیلے۔ ارے اس کے لیے میں نے، اللہ فرماتا ہے سنو بھوانی گنج والو، ہو کیسے سکتا ہے محبوب تیرا مشن نہ پھیلے۔ ارے اس مشن کو پھیلانے کے لیے میں نے ایک جماعت تیار کر دی ہے، اس کے نمائندے میں نے تیار کر رکھے ہیں، اس کو پھیلانے والے میں نے تیار کر دیے ہیں۔ ابو بکر کو میں نے تیار کیا ہے، عمر کو میں نے تیار کیا۔ ہو کیسے سکتا ہے تیرا مشن نہ پھیلے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آدھی دنیا تک جس نے اسلام کو پھیلایا، توحید کا جھنڈا لہرایا، نبوت کی شان کو بتایا، وہ کوئی اور نہیں خلیفہ دوم حضرت عمر تھے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کون عمر؟ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جسے مانگا رب سے اس کے آفاقی پیغمبر نے لاج رکھی دعائے نبی کی، پھر اس مرد قلندر نے جو خشک دریا چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کون فاروق؟ دم ہجرت جب وہ نکلا، دم ہجرت جب نکلا، پکارا ہر پجاری کو پکارا، ہر بدبخت ابو جہل ابو لہب، ہر بدبخت ناری کو، ارے حلالی ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو، حلالی ہو عمر تیری جرات کو سلام، عمر تیری شجاعت کو سلام، عمر تیری بہادری کو سلام، حلالی ہو تو روکو عمر کی اس سواری کو، میں موتیں بانٹنے نکلا ہوں، بتلا دو بھکاری کو جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے آقا نے ایسے ہی نہیں
हो कैसे सकता है मेरे आका का मिशन न फैले। मेरे आका ने मांगा था, रो रो करके मांगा था, तहज्जुद के बाद मांगा था, काबे का गिलाफ पकड़ करके मांगा था। हो कैसे सकता है। अल्लाह सहाबा की वो जमात है जिसे अल्लाह चुनता है, नबी को अल्लाह चुनता है। कोई चाह करके नबी नहीं बन सकता है, कोई चाह करके सहाबी नहीं बन सकता है, रब का चुनाव होता है। मेरे आका ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत बख्श। मेरे आका ने दुआ की थी, दो में से एक दे दे, दो में से एक दे दे, या उमर बिन खत्ताब या अमर बिन हिशाम। अमर बिन हिशाम जिसको हम और आप अबू जहल कहते हैं, जिसको सारी दुनिया अबू जहल कहती है। दो में से एक दे दे। मेरे आका ने यह नहीं फरमाया कि मौला दोनों दे दे, ये नहीं कहा दोनों दे दे, कहा कि एक दे दे। आका क्यों? मैं सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह हो कैसे सकता है कि अल्लाह आपकी दुआ को कबूल न करे? हो कैसे सकता है अल्लाह आपकी जुबान पर आए हुए कलिमात को कबूल न करे? अरे दुआ की दूर की बात है, हम और आप अगर दुआ करते रहें, रब की मर्जी आए कबूल करे न करे, मुसल्ला फाड़ डालें, रब की मर्जी आए कबूल करे न करे, जिंदगी भर इबादत करें, हो सकता है अल्लाह कबूल करे ना करे, उसकी मर्जी है मौला। अरे मैं सवाल करने लगा, या रसूल अल्लाह आप दोनों को मांग सकते थे, आपने दोनों क्यों नहीं मांगा? आपने दोनों क्यों नहीं मांगा? हो नहीं सकता कि आप मांगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल ना करे। अरे दुआ तो दूर की बात है, आप सिर्फ ख्याल कर दे तो अल्लाह किबला बदल देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ख्याल सिर्फ हो जाए तो अल्लाह किबला बदल देता है। हो कैसे सकता है अल्लाह आपकी दुआ को रद्द कर दे? हो कैसे सकता है आप दोनों को मांगे अल्लाह दे नहीं? मेरे आका फरमाते हैं ताकि कोई बाद में आने वाला ये ना कहे मोहम्मद ने अपने यार अपनी मर्जी से चुने हैं, अपनी मर्जी से चुने हैं। इसलिए कि सहाबा वो है जिन्हें रब चुनता है। जो किसी सहाबी पर उंगली उठाए वो किसी सहाबी पर नहीं उंगली उठा रहा है, सबसे पहले रब पर उंगली उठा रहा है। जो किसी नबी पर उंगली उठाए वो उंगली नबी पर नहीं उठ रही है, किसी नबी पर नहीं उठ रही है, सबसे पहले रब पर उठ रही है। मिसाल के तौर पर मैं भवानीगंज में आया हूं, अगर मुझ पर कोई उंगली उठाए, मुझ पर कोई एतराज करे, मुझ पर एतराज नहीं है, एतराज आप लोगों पर होगा। आपने कैसे बुलाया? सहाबा पर एतराज करने का मतलब उमर को कहना कि उमर 2 नंबर का था, ये कहना उमर अहले बैत का माल खा गया, ये कहना उमर ने फातिमा के घर को जला दिया। उंगली उठाना, सुन लो कान खोल करके उमर की शान में गुस्ताखियां करने वालों, सुन लो कान खोल करके मेरी बात को अपने जीरो दिमाग पर नोट कर लेना। कैसे कह सकते हो? इसलिए कि सहाबी को तो रब चुनता है। मेरे आका की हदीस बता रही है, मेरे आका ने फरमाया था कि मौला 2 में से एक दे दे, या अबू जहल अमर बिन हिशाम को दे दे या उमर को दे दे। चुनने तुझको होंगे और यार मेरे होंगे, चुनाव तेरा होगा, यार मेरे होंगे। रब चुनता है। उंगली उठाना उमर पर, गोया कि तूने एतराज उमर पर नहीं किया है, सवाल उमर पर नहीं किया है, तूने रब पर एतराज किया है। जो रब पर एतराज करे वो मुसलमान नहीं रहता। बेशक बेशक मुसलमान नहीं रहता। मैं काफिर नहीं कह रहा हूं, बस मुसलमान नहीं रहता। समझ जाइए, जो मुसलमान नहीं रहता क्या रहता है? मुसलमान नहीं रहता वो। मेरे आका ने कहा था, वो कैसे सकता था मिशन न फैले? 2 में से एक दे दे। अल्लाह ने कहा, दुआ पहुंची प्यारे आका की अर्शों पर, दुआ पहुंची। अल्लाह ने कहा, जिब्रील जिब्रील मेरे महबूब ने उमर को मांगा है, अमर बिन हिशाम को मांगा है, जा दोनों का दिल लेकर के आ, अबू जहल का भी दिल लेकर के आ, उमर का भी दिल लेकर के आ। मैं देखूंगा कौन मेरे मोहम्मद के लायक है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं देखूंगा कौन मेरे महबूब के लायक है। जिब्रील दिल लेकर के आता है, मौला दिल देखता है। मैं अपने तखय्युल में बात करता हूँ, मेरे ख्याल के साथ चलिएगा भवानीगंज। जब दुआ अर्श पर पहुंची है, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया, दोनों का दिल लेकर के आओ। दिल सामने पेश है। अल्लाह देखता है कि उमर ला इल्म है, उमर ला इल्म है, उमर जानता नहीं है, उमर ने भी कुरान नहीं पढ़ा है, उमर तक दावत नहीं पहुंची है, उमर रसूल को जानता नहीं है, उमर रसूल को पहचानता नहीं, ला इल्म है, नहीं जानता है। अबू जहल जिद्दी है, अबू जहल जिद्दी है, जबकि कंकरों ने उसके हाथ में कलमा पढ़ा है। अबू जहल जिद्दी है, जबकि पत्थर उसके सामने सलाम करते हैं। अबू जहल जिद्दी है, जबकि चांद को 2 टुकड़े मेरे आका ने उसके सामने किया है। अबू जहल जिद्दी है। मौला ने फरमाया, जो जिद्दी है उसे उठा करके जहन्नम में फेंक दूंगा, जो ला इल्म है उसे इल्म अता करके अपने महबूब के कदमों में डाल दूंगा। सुभान अल्लाह।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत सरकार मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें लग रहा है कि 2-3 लोगों के बात समझ में आई क्या? पहले इस्लाम भाई, फिर ये भाई, फिर वो भाई, बहरहाल। और आज भी अल्लाह के हिदायत देने का पैमाना यही है, यही है। जो जिद्दी होता है ना, अल्लाह उसको हिदायत नहीं देता। इसलिए जिद का कोई इलाज नहीं होता है। आप देखेंगे ना, बहुत लोग जिद्दी होते हैं, खाली जिद। कोई आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जिद से आपका रास्ता रोके हुए है। जिद है, आपका रास्ता रोके हुए है, कुछ नहीं कहा, लेकिन जिद है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी अल्लाह तबारक व तआला का पैमाना यही है, जिद्दी को हिदायत नहीं मिलती है और जिद का कोई इलाज नहीं होता है, उसका इलाज सिर्फ मौत है, बस। जिद का कोई इलाज नहीं है। तो मेरे आका ने रो रो करके उमर को मांगा था, तहज्जुद के बाद मांगा था। उमर तो मुरीदे रसूल है, मुरादे पैगंबर भी है, मेरे आका की मुराद है। मेरे आका ने आपको मांगा था, दुआओं में मांगा था कि मौला ऐसे नहीं चाहिए। अब यहाँ से सुनिएगा, जो लोग कहते हैं उमर ने अहले बैत के घर को जला दिया, उमर ने फातिमा के घर को जला दिया, उमर ने अहले बैत को परेशान किया, मैं बताने लगा हूँ, तूने कुरान को नहीं पढ़ा है, तूने रिवायत को नहीं पढ़ा है, तूने हदीस को नहीं पढ़ा है, तूने बात को सुनी अधूरी। सुनो हजरात गिरामी, तवज्जो। अल्लाह ने क्या कहा और अल्लाह के हबीब ने क्या दुआ की? दुआ की, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम। मौला उमर ऐसे नहीं चाहिए, उमर इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। बेशक बेशक, बड़ा जुमला है भवानीगंज वालों। हम मुसलमान हुए, हमारी इज्जत, मुसलमान होने की बुनियाद पर हमारी शराफत, हमारी क़यादत, हमारी बुलंदी। क्यों? हम इस्लाम ले आए, हम कुरान के दामन में आ गए, कुरान के जीने में आ गए, कुरान के सफीने में आ गए, रसूल के मदीने में आ गए, हमारी इज्जत। लेकिन आका ने कहा उमर यूं ही नहीं चाहिए, यूं ही नहीं चाहिए। अइज़्ज़िल इस्लाम, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, इस्लाम की इज्जत के लिए उमर चाहिए। और पहले ही दिन इज्जत मिली, बुध के दिन मेरे आका ने दुआ फरमाई, जुमेरात को हजरत उमर इस्लाम लेकर के आते हैं। सुभान अल्लाह। आज जुमेरात का दिन है, भी दिन ही था ना, जुमे की रात है। जी जी, जुमेरात को इस्लाम लेकर के आए। जब इस्लाम लेकर के आए हजरत उमर, तो सुनो, जो लोग कहते हैं हजरत उमर या सहाबा अहले बैत के दरमियान फसाद है, सुने, हजरत अली ने नारा लगाया था, इस्लाम की उमर पर अली ने नारा लगाया था, मेरे आका ने नारा लगाया था। जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, आज इस्लाम जो उमर लेकर के आया है उसकी खुशखबरी सिर्फ यहाँ के लोग नहीं मना रहे हैं, कायनात के सारे फरिश्ते एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। अरे सुनो, उमर इस्लाम ला चुका है, उमर इस्लाम ला चुका है। इस्लाम उमर पहले दिन इज्जत मिली, ऐसे नहीं मांगा, ऐसे नहीं मांगा। अइज़्ज़िल इस्लाम, इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। अब मेरे जुमले को नोट करना, जो लोग उमर पर बात करते हैं, हजरत उमर की शान में गुस्ताखियां करते हैं और कहते हैं हजरत उमर ने अहले बैत को परेशान किया, हजरत उमर ने फातिमा के घर को जला दिया। अरे सुनो सुनो, तूने कहीं और सुना होगा, मैं बताता हूँ। सरकार की दुआ है, सरकार ने फरमाया इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। अगर हजरत उमर को अहले बैत को परेशान करना होता, अल्लाह कभी ना देता अपने महबूब को। फातिमा के घर को जलाना होता, अल्लाह कभी ना देता। क्यों? इसलिए कि फातिमा इस्लाम की इज्जत है, अली इस्लाम की इज्जत है, हसन इस्लाम की इज्जत है, हुसैन इस्लाम की इज्जत है। और मेरे आका फरमा रहे हैं कि उमर इस्लाम की इज्जत के लिए चाहिए। अल्लाह कैसे देता, कैसे देता? सोचने की बात है। कैसे कह रहे हो, कैसे कह रहे हो, कैसे समझ रहे हो? एक साहब ने मुझसे कहा कि आप कहते हैं कि मेरे आका ने फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत में सैयदा आयशा से करता हूं। मैंने कहा जी बात तो ठीक है। कहा मैंने ये भी पढ़ा है कि सबसे ज्यादा मेरे आका ने फरमाया मैं मोहब्बत सैयदा फातिमा ज़हरा से करता हूं। मैंने कहा ये भी सही है।
کہا کہ یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ محبت میرے آقا نے فرمایا مجھے حضرت علی سے ہے. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے. پھر کہا کہ میں نے یہ بھی پڑھا میرے آقا نے فرمایا سب سے زیادہ محبت ابوبکر صدیق سے. میں نے کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, سبھی صحیح ہے. میں نے کہا تو نے سنا ہے, چلتے 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 سنا ہے, تو نے صحیح سے چلتے پھرتے سنا ہے. کہیں گیا تھوڑی سی بات سن لیا چلا آیا, کہیں گیا تھوڑی سی بات سن لیا چلا آیا. تو نے ادھورا سنا ہے, ادھوری بات سنی ہے, پوری کروں گا میں, مجھ سے سن لے. سب صحیح ہے لیکن سمجھنے کا طریقہ ہے, ماننے کا طریقہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے. حضرت عمر پر اعتراض کرنے والوں سنو سنو, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا, فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا. اور خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا. کون عمر, کون عمر, کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا. ایسے کیسے, میں بتا رہا ہوں جب عمر اسلام لے کر کے آئے آپ نے کہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے کہا پھر چھپ چھپ کر کیوں نماز پڑھی جا رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عمر بات یہ ہے کہ ابھی ہم کم ہیں, مسلمان کمزور ہیں, اور کفار و مشرکین میرے صحابہ کو بہت ستا رہے ہیں, ڈرا دھمکا رہے ہیں, ستا رہے ہیں, وار رہے ہیں. اس لیے حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ چھپ کر نماز نہیں ہوگی, ہم حق پر ہیں, چلیے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سنیے عمر پر بولنے والوں, سنو حضرت عمر کو, سنو, چلو چلو. حضرت عمر نے ننگی تلوار لی, ننگی تلوار لی. ایک گروہ کے سردار حضرت عمر ہے, ایک گروہ کے سردار امیر حمزہ ہیں, سرکار کے چچا ہیں. 40 لوگ اس وقت تھے. 40واں کا عدد پورا کیا حضرت عمر نے, 20-20 کر کے. حضرت عمر تلوار لے کے ٹہل رہے ہیں, کعبے میں نماز ہو رہی ہے, کعبے میں نماز پڑھی جا رہی ہے, تکبیر تحریمہ ہو چکی. میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں, دیکھا کفار مکہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عمر موجود ہے, اس لیے کہ عمر موجود ہے. اسی لیے پیر نصیر نے کہا تھا کہ کعبے میں نماز جے ادا ہو کے رہے, کعبے میں نماز جے ادا ہو کے رہے گی. خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا سر ہے, وہ نام عمر, نام عمر, نام عمر ہے. کیسے کوئی کہہ سکتا عمر 2 نمبر تھا؟ یہ کہنے لگا بکواس کرنے والا عمر 2 نمبر تھا, 2 نمبر والا تھا. میں نے کہا چل, نہ تیری بات نہ میری بات, رسول اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں, اپنے آقا سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ عمر کیسا تھا, آپ بتائیے. نہ تیری بات نہ اس کی بات نہ اس کی بات, پیارے آقا سے پوچھتے عمر کیسے تھا. حدیث پاک موجود ہے, حضرت پیارے آقا کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہے, سید الملائکہ حاضر ہے, جبریل حاضر ہے. آگے سے عمر آ رہے ہیں, جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ جبریل کہہ رہا ہے. میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے, یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے. میرے آقا کہنے لگے جبریل یہ بتاؤ کیا میری عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ آسمان والے بھی جانتے ہیں. جبریل نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی مولوی نہیں کہہ رہا, کوئی تاریخ داں نہیں کہہ رہا. جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ زمین سے زیادہ آپ کی عمر کو آسمان والے جانتے ہیں, بے شک آسمان والے جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جبریل پھر میرے عمر کی شان بتا, کیسے جانتے ہیں؟ سنو, شان عمر پر اعتراض کرنے والوں, میرے آقا کہہ رہے ہیں
जिब्रील से शान उमर पता चला, यहाँ से मालूम चला, रिवायत बताती है, हदीस बताती है कि शान उमर मेरे आका सुनना चाह रहे हैं। पता चला शान उमर बयान कर रहा है, जिब्रील बयान कर रहा है, सैयदुल मलाइका है, सिदरा का मकी है, नूर है, सारे फरिश्तों का सरदार है, बयान कर रहा है शान उमर। पता चला अरे शान उमर बयान करना जिब्रील की सुन्नत है और शान उमर सुनना मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरे आका फरमा रहे हैं, अपने आका से पूछते उमर कैसा था, जिब्रील बता मेरा उमर कैसा है, आसमान वाले कैसा जानते हैं। हजरत जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह मैं क्या बताऊं, इतनी मिसाल दे सकता हूं, अगर मुझे या किसी को नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र मिल जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल की थी, कुरान पाक में मौजूद है। 1000 साल हजरत नूह अलैहिस्सलाम रहे, अपने कौम को तबलीग किया, 1000 साल रहे। जिब्रील कह रहे हैं तवज्जो से सुनिएगा हजरत उमर की शान को, तवज्जो सुनिएगा हजरत उमर के मर्तबे को, हजरत उमर की शान को, हजरत उमर की बुलंदी को सुनिएगा, जो खलीफे दोम है और खलीफे दोम है, जो दूसरे इमाम है। जिब्रील कहता है या रसूल अल्लाह अगर मुझे या किसी को 1000 साल की जिंदगी मिल जाए और वो बैठ जाए कलम कागज ले करके उमर के फजाइल लिखना शुरू करे, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हजारों साल खत्म हो जाएंगे, लेकिन उमर की शान को नहीं लिख सकता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं नहीं कह रहा, माशाअल्लाह, मेरे आका बयान कर रहे हैं। मैंने तो सिर्फ बयान किया है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ। ऐसे नहीं थे, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा। मैं रिवायत सुना रहा हूँ ना आपको, हजरत उमर कैसे एहतराम किया करते थे अहले बैत का, मैं सुना रहा हूँ आपको। गलत सुना तूने, गलत पढ़ा तूने। कुरान कह रहा है रहमाउ बैनहुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। कुरान कह रहा है मेरे मोहम्मद के जो सहाबा हैं कुफ्फार पर सख्त हैं। कुरान कह रहा है और आपस में वो शीरी है, आपस में मीठे हैं। रहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है, आपस में मोहब्बत करने वाले। तू कैसे कह रहा है हजरत उमर ने माल गसब किया, तू कैसे कह रहा हजरत उमर ने कुर्सी ले ली, तू कैसे कह रहा। अरे सुन, मैं बता रहा हूँ हजरत उमर कैसे एहतराम किया करते थे। हजरत उमर मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, खुतबा पढ़ रहे हैं, उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन है, उस वक्त आप अमीरुल मुमिनीन है। 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत है, आधी दुनिया पर आपकी हुकूमत है, आपके नाम का सिक्का चल रहा है, आपका दबदबा इतना है, आपका रौब इतना है, जलाल इतना है, आज का काफिर लिखने पर मजबूर है। अगर एक और उमर होता पूरी धरती पर इस्लाम होता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर। खुतबा दे रहे हैं, दबदबा इतना है, रोब इतना है, पावर इतनी है, जलाल इतना है, खुतबा दे रहे हैं। इमाम हुसैन का भी बचपन है, अपने दोस्तों के साथ मस्जिद के बाहर खेल रहे हैं। सुने रिवायत और पढ़ और सुन, मस्जिद के बाहर खेल रहे हैं। इमाम हुसैन का बचपन है, अभी बड़े नहीं हुए हैं, आप खेल रहे हैं, अपने दोस्तों से कह रहे हैं। वो जो खुतबा दे रहा है ना उमर, देख रहे हो, अगरचे अमीरुल मुमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। अरे कुफ्र जिसके शुजाअत से लर्जा है, कुफ्र जिसकी हैरत से लर्जा है, अरे जिसको देख करके शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है, अरे जिसको देख करके बड़े बड़े पुजारी भाग जाया करते हैं, जिसको देख करके बड़े बड़े बादशाह अपनी कुर्सियां छोड़ देते हैं, इतनी हैबत है। सुन, हजरत हुसैन फरमा रहे अपने दोस्तों से, वो जो खुतबा दे रहा है उमर ना, वो मेरे नाना का गुलाम है। सुभान अल्लाह, मेरे नाना का गुलाम है। सुभान अल्लाह। उन्हीं बच्चों के साथ हजरत उमर के साहिबजादे अब्दुल्लाह इब्न उमर भी खेल रहे थे, उमर भी वो भी खेल रहे थे। आपके साहिबजादे वो भी आपके साथी हैं, इमाम हुसैन के साथी हैं, उम्र थे। घर आए, उन्होंने कहा बाबा अब्बा जान आपको पता है आपके बारे में हुसैन कह रहे थे। उमर ने तड़प कर कहा बता बेटा, जल्दी बता क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे। नबी का नवासा क्या कह रहा था, नौजवाना ने जन्नत का सरदार क्या कह रहा था, जिसको नबी गले से लगाते थे, चूमते थे, अपने कंधे पर खिलाया है, और हुसैन वो है, क्या कह रहे थे। अब्बा जान हुसैन कह रहे थे आपके बारे में, अपने दोस्तों से कह रहे थे, वो जो मिंबर पर खुतबा दे रहा उमर, वो मेरे नाना का गुलाम है। उमर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, उठकर बैठ
बैठ गए। कहा कि फिर से बता क्या कह रहे थे? कहा कि ये कह रहे थे कि उमर जो है मेरे नाना का गुलाम है, मेरे नाना का गुलाम है। अगरचे खलीफतुल मुस्लिमीन है, अगरचे आधी दुनिया पर हुकूमत है, अगरचे उसके नाम का सिक्का चल रहा है, अगरचे उसका रोबो दबदबा इतना है, लेकिन मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने कहा बेटा क्या सही बता रहा है? यही कहा है? कहा हाँ यही कहा है। कहा कि फिर ले कलम कागज लेके जा, हजरत हुसैन के घर जाने के बाद कह दे बारगाह में अरीजा पेश कर दे, हुसैन जो तूने कहा है वो लिख करके दे दे, लिख करके दे दे कि उमर मेरे नाना का गुलाम है। आप जाते हैं, आपके साहिबजादे जाते हैं, इमाम हुसैन के घर जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं आप जो अपने दोस्तों से कह रहे थे मेरे बाबा जान के बारे में, आपने कहा था कि उमर जो है मेरे नाना का गुलाम है, मेरे बाबा ने कहा है आप लिख करके दे दिए। हजरत हुसैन ने लिख करके दे दिया। हजरत हुसैन अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, लिख किसको रहे हैं? जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो बादशाह है, लिख किसको रहे हैं? जिसका सिक्का चल रहा है, लिख किसको रहे हैं? अरे जो पानियों पर हुकूमत कर रहा है, लिख किसको रहे हैं? जो समंदरों पर हुकूमत कर रहा है, लिख किसको कर रहे हैं? जो जमीन पर हुकूमत कर रहा है, लिख किसको रहे हैं? जिसकी हुकूमत आग पर भी चल रही है, जिसकी हुकूमत कायनात में कई चीजों पर चल रही है, अमीरुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, हजरत हुसैन लिख रहे हैं। अभी बच्चे हैं, इमाम हुसैन ने लिख दिया हाँ उमर मेरे नाना का गुलाम है, मेरे नाना का गुलाम है। हुसैन इब्ने अली लिख करके भेज दिया, वो रोका लेकर के, वो कागज लेकर के हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर आपके साहिबजादे बारगाह में आते हैं और कहते हैं बाबा जान लीजिए। हजरत उमर ने उसे चूमा है, आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपकी आंख में आंसू आ गए, आप रोने लगे और कहने लगे उमर सुन ले, सुनिएगा कैसे उमर ने हुसैन का एहतराम किया है, सुनिएगा कैसे उमर ने हुसैन को चाहा है, सुनिएगा कैसे उमर ने अहले बैत को चाहा है। अरे तूने गलत पढ़ा है, सुन हदीस पाक में मौजूद है, ये रिवायत बयान कर रहा हूं ताकि गलत फहमी दूर हो जाए। इमाम हुसैन के उस खत को देख करके हजरत उमर के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आंसू आने के बाद अपने बेटे से कहते हैं बेटे सुन अब्दुल्ला सुन, मेरे मरने के बाद वसीयत में कर रहा हूं तुझको, मेरे मरने के बाद सुन ये कागज मेरे सीने पे रख देना, मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद ये कागज मेरे सीने पे रख देना। ऐसा होता है। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी अजमईन या रब। नारा कोई लगा दे, नारा लगा दे। माशाअल्लाह, हेलो माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज भवानीगंज में पहली बार नारा लगा मजमे से, अभी माइक बंद हुआ है तब, और कोई पीछे से लगा दे नारा। कभी कभी जो है ना दुश्मन को जलाने के लिए भी ये लगता है, लगा दे कोई। सेटिंग जो है ना रोज सेटिंग करानी पड़ती है। हेलो माइक वाले जो है ना कभी नहीं लगाएंगे, इसको माइक चलाने का तजर्बा नहीं है बिल्कुल नहीं। भाई मोबाइल बड़ा अच्छा माइक है, इसको ले सकते हैं। अल्लाह माइक वाले भाई अपने माइक की आप हिफाजत करें, है ना।
چونکہ بیچ میں جب مین پوائنٹ پر بندہ پہنچتا ہے تو مائک ہی خراب ہو جائے. 60 ہو گئی. اچھا چلیں درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سنو اس روایت کو سنو, سنو اپنے ایمان کو تازہ کرو, سنو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اہل سنت والجماعت سنی کا عقیدہ کیا ہے. حضرات گرامی سنو حضرت عمر کی روایت. روایتوں میں آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے, میں بتا رہا تھا حضرت حسین نے جب لکھ کر کے دے دیا, ہاں عمر میرے نانا کا غلام ہے, میرے نانا کا غلام ہے. آپ کے صاحبزادے جب اس خط کو لے کر کے اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں عمر نے لکھ کر کے دے دیا. روایت بتاتی ہے حضرت عمر نے جب اس خط کو دیکھا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے حسین ابن علی, لکھا ہوا ہے ہاں عمر میرے نانا کا غلام ہے. عمر ابھی چھوٹے ہیں, بچپن میں ہیں, لکھ کس کو رہے ہیں جو آدھی دنیا کا حکمراں ہے, لکھ کس کو رہے ہیں جو خلیفۃ المسلمین ہے, لکھ کس کو رہے ہیں جو امیر المؤمنین ہے, لکھ کس کو رہے ہیں جس کا سکہ ساری دنیا میں چل رہا. حضرات گرامی سنیے گا عمر کے اس جواب کو, سنیے گا عمر کے اس جواب کو سنیے گا. عمر کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے عبداللہ سے, بیٹے عبداللہ سن, میں تجھ کو ایک وصیت کر کے جاتا ہوں, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں, جب میں قبر میں مجھے لٹانا, تو سنو حسین کا یہ لکھا ہوا, حسین کا یہ لکھا ہوا جو حسین نے لکھا تھا میرے سینے پر رکھ دینا. عمر کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ عمر کو محبت تھی. عمر کہہ رہے ہیں میری وصیت سن, اگر میرا انتقال ہو جائے, اگر میری وفات ہو جائے, حسین نے جو لکھا ہے کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے, میرے سینے پہ رکھ دینا. اس لیے کہ حسین کا یہ لکھا ہوا ہی عمر کی بخشش کے لیے کافی ہے. سنو یہ محبتیں تھی, محبتیں تھی. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں عمر 2 نمبر تھا, وہ کیسے سکتا ہے. حضرات گرامی بولنے والے بولتے رہے, یہ محبتیں تھیں, یہ ساری چیزیں تھی. ایسے ہی نہیں, ایک روایت اور آپ کو سناتا ہوں. حضرت عمر کی کوشش رہتی تھی سب سے پہلے حضرت حسین کو خود سلام کیا کرتے تھے, پہلے سلام کرتے تھے, بادشاہ تھے, پہلے سلام کرتے تھے. اتنی پہل کرتے تھے حضرت حسین پریشان ہو گئے, بولے عمر ہر وقت مجھے پہلے سلام کرتے ہیں, لیکن آج میں پہلے سلام کروں گا, آج میں پہلے سلام کروں گا. یہ بھی روایت تو بتائی جائے, یہ بھی تو لوگوں کو سنایا جائے, یہ بھی تو بتایا جائے کہ محبتیں تھی آپس میں. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. آپس میں رحماء بینہم, آپس میں وہ محبت والے تھے, محبت بانٹنے والے تھے. اب تیری بات مانو یا قرآن کی بات مانو؟ ارے تاریخ نہیں کہہ رہی, تاریخ کا لکھا ہوا مٹ سکتا ہے, کسی اور کا لکھا ہوا مٹ سکتا ہے, قرآن کا لکھا ہوا نہیں مٹ سکتا ہے, قرآن کا لکھا ہوا نہیں مٹ سکتا ہے. سنو حضرت عمر نے سوچا, حضرت عمر پہلے سلام کیا کرتے. حضرت حسین نے سوچا آج میں پہلے سلام کروں گا. دیکھا حضرت عمر مسجد سے باہر نکل رہے ہیں, آپ ستون کے پیچھے, کھمبے کے پیچھے چھپ گئے تاکہ عمر مجھ کو دیکھ نہ پائے, میں پہلے سلام کر لوں. ہوا کیا, ابھی عمر پیچھے ہی تھے, آپ نے پہلے ہی سلام کر لیا, السلام علیکم یا سبط النبی, پہلی سلام کر لیا. حضرت حسین گھبرا گئے, کیسی بات ہے, آپ نے مجھے دیکھا بھی نہیں, میں آج چاہ رہا تھا کہ آپ کو پہلے سلام کروں, لیکن آپ نے پہلے سلام کر دیا, کیا بات ہے, آپ نے دیکھا نہیں, پہچانا کیسے؟ کہا کہ حسین تیری صورت صرف نبی والی نہیں ہے, تیری خوشبو بھی نبی والی ہے. تیری خوشبو نے بتایا کہ یہاں پر حسین موجود ہے, خوشبو بتا رہی ہے حسین پر موجود ہے, میں نے پہچان لیا. سوچئے وہ فاروق ہے, وہ فاروق ہے, وہ فاروق اعظم ہے, وہ آپ کی شان ہے, وہ آپ کی عظمت ہے. اور ایسے ہی نہیں, ایسے ہی نہیں, ایک مرتبہ گھر میں میٹنگ چل رہی تھی, گھر میں میٹنگ چل رہی تھی, مشورے ہو رہے تھے, خلیفۃ المسلمین ہے, مشورے ہو رہے تھے. امام حسین آپ کے گھر پہ آئے, دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ باہر کھڑے ہیں. پوچھا کہاں ہے تمہارے بابا خلیفۃ المسلمین؟ کہا کہ اندر ہیں, لیکن کوئی میٹنگ چل رہی ہے, مجھے جانے نہیں دیا. امام حسین نے سوچا جو اپنے بیٹے کو نہیں جانے دیا, مجھے کیا جانے دیں گے, میں تو علی کا بیٹا ہوں, میں تو علی کا بیٹا ہوں. آپ واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد آپ چلے گئے, چلو ظہر میں مل لوں گا, چلو مسجد میں مل لوں گا. حضرت عمر باہر نکلے, پوچھا عبداللہ سے کوئی آیا تو نہیں تھا, کوئی آیا تو نہیں تھا؟ عبداللہ کہنے لگے حسین آئے تھے. کہا پھر اندر کیوں نہیں لایا؟ کہا میٹنگ چل رہی تھی, آپ نے اجازت نہیں دی تھی.
किसी को आने मत देना, मुझे नहीं इजाजत दी, क्यों नहीं लाया अंदर? इतना सुनना था। उमर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उल्टे पांव पलटते हैं, मस्जिद नबवी की तरफ जाते हैं और जाने के बाद इमाम हुसैन से सवाल करते हैं, आप आए थे? जी आया था। क्यों नहीं अंदर आए? कहा कि मैंने सोचा जब आपके बेटे मौजूद है, अब्दुल्ला आपके बेटे हैं, आपके लख्ते जिगर हैं, आपके साहिबजादे हैं, जब वो बाहर खड़े हैं उनको इजाजत नहीं मिली अंदर जाने की, मैं तो अली का बेटा हूं, मैं कैसे अंदर जा सकता था? अरे सुनो, हजरत उमर ने जब ये सुना है, ये कलिमात सुने हैं, आपकी आंखें छलक पड़ी हैं, आपके आंसू निकल आए हैं। आपने कहा, अरे हुसैन तुझे नहीं मालूम क्या मेरे बेटे का नाना रसूलुल्लाह है? क्या मेरे बेटे का बाबा अली शेर खुदा है? क्या मेरे बेटे की माँ खातूने जन्नत की सरदारा है? क्या और कोई है? आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपना इमामा उतारा, हुसैन के पांव पे रख दिया। कौन रख रहा है? खलीफतुल मुस्लिमीन है, अपने वक्त का बादशाह है, अपने वक्त का बादशाह है, जिसके डर से बड़े बड़े बादशाह खुद अपनी सीट छोड़ दिया करते हैं। अपना इमामा उतार करके हुसैन के कदमों पे रख रहा है। कह रहे हैं कि हुसैन, अरे कानून दूसरों के लिए हो सकते हैं, कानून औरों के लिए हो सकते हैं, कानून मेरे बेटे के लिए हो सकते हैं, लेकिन उमर को वो दिन भी याद है जब उमर खत्ताब के ऊंटों को चराया करता था, उसे मारा भी जाता था। उमर को वो दिन भी याद है जब उमर पहाड़ी में और सहारा में या जंगलों में रहा करता था, ऊंटों को चराया करता था। उमर को वो दिन भी याद है। आज उमर अगर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है, आज उमर का दबदबा अगर ये है, आज उमर का रोब अगर ये है, अरे तेरे नाना के कदमों की खैरात रसूलुल्लाह का करम रहा है। इजाजत औरों के लिए लेनी पड़ेगी, टाइम औरों के लिए है। उमर जब तेरी मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, तू आ सकता है। टाइम दूसरों के लिए, परमिशन दूसरों के लिए। बेशक ये मोहब्बत थी। गलत पढ़ाया गया उनको, जिन्होंने कहा कि नहीं उमर ने बड़े मतलब जो ले लिया, माल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, जुल्म किया, गलत पढ़ाया। कुरान कह रहा रहमा बैनहुम, आपस में मोहब्बत करने वाले थे, आपस में मोहब्बत करने वाले थे। कौन? उमर। जो कुफर के छक्के छुड़वाए उसे उमर कहते हैं। वो वही कहते हैं ना जिनको उमर से डर है। उमर से डर तो शैतान। कुछ लोग कह रहे उमर ने नया काम किया, उमर ने कुछ नए काम किए। जैसे सबसे पहले 20 रकात आप पढ़ते हैं नमाज तरावी, 20 रकात का एहतिमाम करने वाले सबसे पहले हजरत उमर है। सबसे पहले 20 रकात की तरावी का एहतिमाम करने वाले हजरत उमर है। कौन? उमर। जिसने सबसे पहले काबे का दरवाजा खोला उसे फारूक कहते हैं। वो उमर सबसे पहले जिसने एलानिया हिजरत की, सबको ऐलान करके हिजरत की, छुप करके नहीं हिजरत की, उमर वो है। उमर बिन खत्ताब वो है। कौन? उमर। जिसने छुप करके नहीं हिजरत की, एलानिया हिजरत की, उसे उमर बिन खत्ताब कहते हैं। कौन? उमर। अरे जिसने महकमे कायम किए वो उमर बिन खत्ताब है। कौन? उमर। अरे जिसने, जो आज देख रहे हैं ना, आप फौज का निजाम देख रहे हैं, आप पुलिस का निजाम देख रहे हैं, आप छावनी देखते हैं, आप कैंट देखते हैं, अरे तारीख उठाइए, ये सब हजरत उमर की देन है। हजरत उमर ने सिखाया हुकूमत कैसे करनी है, हजरत उमर ने सिखाया है इंसाफ कैसे करना है, अदालत कैसे करनी है, लोगों के हक कैसे लेने हैं, कैसे देने हैं। अरे जिसने जो काबे का दरवाजा सबसे पहले खोलता है उसे उमर कहते हैं। जिसने जो एलानिया हिजरत करता है उसे उमर कहते हैं। सबसे पहले जिसने फौजी कैंप कायम किया उसे उमर कहते हैं। जिसने छावनी कायम की उसे उमर कहते हैं। जिसने पुलिस महकमे कायम किए उसे उमर कहते हैं। जिसने डाक कायम किए उसे उमर कहते हैं। जिसने 4000 मस्जिदें बनवाई उसे उमर कहते हैं। जिसे 900 जामा मस्जिद बनवाई उसे उमर कहते हैं। अरे जिसने जो किसी से डरा नहीं, अरे शैतान जिसके रास्ते से भाग जाए, शैतान से डर जाए, उसे उमर कहते हैं। कैसे रोम बड़े बड़े बादशाह जिससे डर जाया करते थे उसे उमर कहते हैं। अरे उसे किसे उमर कहते हैं? जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, बड़ा जुमला फरमाया, बड़ा जुमला फरमाया। भवानीगंज वालों सुनो, मेरे आका फरमा रहे हैं, हजरत उमर के बारे में फरमा रहे। कौन? उमर। जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया, अरे वालिदैन रोते हैं तो वालिदैन, बेटे मर जाते हैं तो वालिदैन रोते हैं, या वालिदैन मर जाए बेटे रोते हैं। अरे सुन उमर, जब ऐसा होता है कोई मर जाए तो कोई रोता है, लेकिन उमर जब तू इस दुनिया से चला जाएगा, जब इस दुनिया से तू चला जाएगा, तुझे देख करके मुझ मोहम्मद का इस्लाम रोएगा। बहुत बड़ा जुमला है ये। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं, जब उमर इस्लाम ले आए हमें यूं लगता था जैसे कोई चीज करीब आ रही हो। उमर ऐसे करीब आ रहे हैं, जब उमर ऐसे करीब आ रहे हैं जैसे इस्लाम करीब आ रहा हो। जब उमर चले गए हमें ऐसा लगता था इस्लाम बहुत दूर चला गया। वो उमर था
वो उमर था, गलत पढ़ाया तुझे पढ़ाने वालों ने। कौन उमर? वही जो चक्के छुड़वाए मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। कौन उमर? मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा। ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत की वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। कौन उमर? अरे बढ़ने लगा था जोर जहालत की फौज का अल्लाह को रोए जमी पे उमर भेजना पड़ा। उमर भेजना पड़ा। यूं ही नहीं उमर आया, यूं ही नहीं आया। आप पढ़ करके देखो, हजरत उमर की अदालत पढ़ के देखो, आपकी रिवायत पढ़ के देखो, आपका इंसाफ पढ़ के देखो। यूं ही नहीं, अगर मैं आपका इंसाफ बताऊं, आपकी खुली कचहरी लिखती थी। मैं नहीं, जब जर्मन में सेमिनार हुआ था आज से 30 साल पहले तकरीबन, सेमिनार हुआ था, मिस विलियम लेकर के किताब आई थी एक औरत लेकर के आई थी, किताब लेकर के आई थी, जर्मन की औरत है। अरे काफिल लिखने पर मजबूर है हजरत उमर पर। मुसलमान छोड़ो, औरों को छोड़ो, काफिल लिखने पर मजबूर है। किताब लेकर के आई थी, 3000 किताबें थी, सारी किताबें हजरत उमर की शख्सियत पर लिखी हुई थी। लोगों ने पूछा, जज ने पूछा, तू किताब लेकर के आई है, वो भी हजरत उमर की शख्सियत पर लेकर के आई है? कहा कि हाँ, मैं उमर से मुतासिर हुई हूँ, इसलिए सबसे पहले आजादी की मुहिम जिसने चलाई है वो उमर है। इसलिए सबसे पहले जिसने इंसाफ का रास्ता दिखाया है वो उमर है। जिसने अदालत को कायम किया है वो उमर है। सारे जमाने को जिसने ये सिखाया है कि जमीन तुम्हारा फर्श है, कोई ऊंचा नीचा किसी को ना समझे, वो उमर है। सबसे पहले अरे आजादी को, बराबरी को, मसावात को लाने वाला इस दुनिया में उमर है। मैं उमर के इस फिक्र से बहुत मुतासिर। सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कह रहा, जर्मन की मिस विलियम कह रही है। जब सेमिनार हुआ था, नुमाइश हुई थी, 3000 किताबें लेके गई थी। अगर इंडिया की बात करूं मैं ना, आप उठाइए, संविधान जब लिखा गया 1947 के बाद, तब देश आजाद हुआ, संविधान लिखा गया। संविधान लिखे जाने के बाद, ये गलत नहीं कह रहा, उठाइएगा पुरानी रिपोर्ट पढ़ करके देख लीजिएगा, आज भी मौजूद है, पुराने अखबारों में लिखी हुई मौजूद है। गांधी ने कहा था, सुनो तुम लोगों ने संविधान तो बना लिया, लेकिन संविधान तभी सही से चलता है जब चलाने वाला सही मजबूत हो, चलाने वाला जब सच्चा हो, चलाने वाला जब ईमानदार हो। गांधी ने कहा था, सुनो मैं मजबूर हूं मिसाल देने पर, अगर तुम्हें देश और हुकूमत सही से चलानी है तो उमर जैसी चलाओ। उमर जैसी चलाओ, उमर जैसा इंसाफ और अदालत कायम करो। अपने तो गैर भी लिखने पर मजबूर है। ऐसे नहीं, मैं झलकियां पेश करता हूं, आप देखिएगा, एक दो झलकी पेश करता हूं, उसके बाद अपनी आखिरी बात पर आता हूं, जहां मुझे एक दो चीज बहुत बयान करनी है जो खैर बहुत कहा करते हैं हजरात के, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में और बहुत ही आसान से, ताकि आप सही तरीके से उसको उतार सकें। आपकी खुली कचहरी लगती थी, ऐसा नहीं कोई आपसे न मिल पाए, जो चाहे मिल लेता था। खुली कचहरी आपकी लगती थी। खुली कचहरी लेके एक शख्स सामने आया, कहा कि उमर ये बताइए, आपने जिसको गवर्नर बनाया है या जिसको पुलिस अफसर बनाया है, जिसको आपने वहदे दिए हैं, जिसको आपने मनसब दिए हैं, साथ में ये भी हुक्म नाफिज किया है कोई अपने लिए चौकीदार नहीं रख सकता है, गार्ड नहीं रख सकता है? कहा कि हाँ मैंने हुक्म दिया है। कहा कि आपने अपने गवर्नरों को, चीफ मिनिस्टरों को, अपने ओहदेदारों को, पुलिस अफसरों को हुक्म दिया है कोई बेहतरीन अच्छा लिबास, रेशमी लिबास नहीं पहन सकता है? कहा कि हाँ दिया है। उसने कहा कि उमर आपको शायद की पता नहीं है, मिस्र की सरजमीन पर अयाज आपका गवर्नर चौकीदार भी रखा है और रेशमी लिबास भी पहनता है। गुस्से से, गजब से उमर का चेहरा जलाल में लाल हो जाता है। आपने फौरन पुलिस अफसर को हुक्म दिया कि फौरन उसकी गिरफ्तारी की जाए। पुलिस अफसर जाते हैं, अयाज को गिरफ्तार करके ले आते हैं। उमर की बारगाह में उमर के इंसाफ को देखो, उमर की हुकूमत को देखो। है कोई आज तारीख मिसाल पेश करने से कासिर है? उमर जैसा कोई हाकिम लेकर के दिखाए, उमर जैसा कोई बादशाह कोई पेश करके दिखाए। तारीख नहीं पेश कर सकती है, नस्ल इंसानियत नहीं पेश कर सकती है जैसा निजाम हजरत उमर ने चलाया है, ऐसा निजाम कायम किया। सुनिए, वो गवर्नर हाजिर होता है, उसको लाया जाता है गिरफ्तार करके। हजरत उमर पूछते हैं, अयाज वो दिन भूल गया? आज तुझे बुखार चढ़ा हुआ है, आज तेरा दिमाग ऊपर को है, वो दिन भूल गया जब तू बकरियां चराया करता था, वो दिन भूल गया जब तू सहरा बयाबानों में रहा करता था। अरे सुन, उमर
तुझे गवर्नरी से सस्पेंड करता है, बर्खास्त करता है। सिर्फ इतना ही नहीं करता, तुझ पर हुक्म नाफिज करता है, बैतुल माल से 200 बकरियां देता है, पहाड़ों में ले जा चरा। जब तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा, जब तेरे कुर्सी का नशा और उसका बुखार जब कम हो जाएगा, उमर के पास आना, फिर भी उमर को तू ऐसा ही पाएगा। सुभान अल्लाह। उमर का इंसाफ ऐसा था, उमर की अदालत ऐसी थी, उमर का इंसाफ ऐसा था, ऐसा था। और मैं सुनाता हूं उसके हुकूमत में कैसे उमर की हुकूमत में कैसे गवर्नर रहा करते थे, चीफ मिनिस्टर जिसको कहा जाता गवर्नर को, ऐसे लोग कैसे रहा करते थे, सीएम कैसे रहा करते हैं। रिवायत बयान करती है हज़रात गिरामी। आज हम लोग ज़रूर ज़िक्र शोहदाए करबला कर रहे हैं, इमाम हुसैन की अदालत को बयान कर रहे हैं, इमाम हुसैन की शान को बयान कर रहे हैं, हज़रत उमर की अदालत को बयान कर रहे हैं, हज़रत उमर की शान को बयान कर रहे हैं। सुन रहे हैं, लेकिन सुनिए सुन्नी मुसलमानों, अरे भवानीगंज के आशिकाने मुस्तफ़ा सुनो, गौर सुनो, मेरी बात को तवज्जो सुनना। हज़रत उमर का इंसाफ पढ़ के देखिए, आपके दौर में कैसे पावर वाले रहा करते थे। हमने आज हमारे पास थोड़े से पैसे आ जाएं, आज हमारे पास थोड़ी सी दौलत आ जाए, हमारे पांव जमीन पर नहीं रहते हैं, हमारा सर आसमान में हो जाता है, हम कुर्सी पर बैठते, हम नीचे नहीं बैठ सकते हैं। आज हमारे पास थोड़ा सा पैसे आ जाए, हमारे अंदर घमंड आ जाया करता है, हमारे अंदर किब्र आ जाया करता है, हम गरीबों से मुंह नहीं लगाया करते हैं, हम लोगों की बेइज्जती करते हैं, बड़े शान से चला करते हैं, कॉलर टाइट करके चला करते हैं। अरे पढ़ो, हजरत उमर की सीरत को पढ़ के देखो, हजरत उमर की शान को पढ़ के देखो, आपके दौर में कैसे कैसे लोग रहा करते थे। आपके दौर में चीफ मिनिस्टर का क्या आलम हुआ करता था, जिसके हाथ में पूरे स्टेट की कमान हुआ करती थी, जिसके हाथ में पूरे स्टेट की कमान हुआ करती थी, पूरे सूबे का मालिक हुआ करता था। अरे हिम्स की सरजमीन पर जिसको आपने गवर्नर बनाया था, उसका नाम था उमर बिन साद। आप भी सहाबी रसूल है। अरे सुनिए, सहाबी की क्या शान हुआ करती है, इनका नाम आ जाए सुभान अल्लाह बोल दिया करे, इसलिए कि वो बाबरकत जमात है। कायनात में आज तक ऐसी कोई बाबरकत जमात नहीं हुई है। इनके नाम से अल्लाह मुसीबतों को दूर कर देता है, इनके नाम से अल्लाह परेशानियों को दूर कर देता है, इनके नाम से अल्लाह बरकतें अता फरमाता है। उमर बिन साद जो चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, कहां के गवर्नर है? हिम्स शहर के हैं, हिम्स स्टेट के हैं। हजरत उमर ने आपको गवर्नर बनाया था, आपको सीएम बनाया था। आप एक खत लिखते हैं, अपना सारा सामान उठाओ, अपना सारा सामान उठाओ और मदीने में आ जाओ और हाजिरी दो और मेरे पास हिसाब दो, तूने क्या किया है, कितना माल जमा किया है, क्या तूने सही लगाया है कि नहीं लगाया है। सुनो कान खोल करके, आज किसी को अगर मोहल्ले का कारपोरेटर बना दी जाए तो पूरे गांव का माल खा जाता है, बेवाओं का माल खा जाता है, गली कूचों का माल खा जाता है, नाली नहीं बनवाता है, खा जाता है माल, सड़क नहीं बनवाता है, खा जाता है माल, अरे पेंशन खा जाता है, हाँ खा जाता है। अरे सुनिए, छोटे कारपोरेटर की बात कर रहा हूं, बड़े सीएम की बात नहीं कर रहा हूं। आइए हजरत उमर की अदालत पढ़ के देखो, हजरत उमर का जमाना कैसा था। हजरत उमर का जमाना यूं था, आम मिसाल सुनिए, हजरत उमर का जमाना ऐसा था कि बकरी सर उठा के पानी पिया करती थी, शेर सर झुका के पानी पिया करते थे, इसलिए बकरी सर उठा के पानी पिया करती थी कि उमर मौजूद है, उसे कोई डर नहीं था। शेर इसलिए सर झुका करके पानी पिया करता था कि उमर मौजूद है, उसे कितना खौफ था। अरे सुनिए, उमर का जमाना कैसा था, उमर की सीरत कैसी थी, उमर की अदालत कैसी थी, उमर का इंसाफ कैसा था। आप दावत देते हैं, चले आओ मदीने, मुझे हिसाब दो। हजरत उमर बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है। आप आते हैं, उमर ने कहा था अपना सारा सामान लेकर के सोचना। आप लोग सोचते होंगे वो सीएम थे, गवर्नर थे, उनके पास बड़ा सामान रहा होगा, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल रहा होगा, बड़ा सामान रहा होगा। सीएम जो थे, गवर्नर जो थे, चीफ मिनिस्टर जो थे, आप आते हैं, लोग देखते हैं, तारीख गवाह है, मदीने की सरजमीन पर आप आते हैं, उमर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हाजिरी देने के बाद हजरत उमर देखते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन देखते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। मेरा गवर्नर, मेरा सीएम, अरे जिसके बदन पे कपड़ा है, उसमें पेबंद लगे हुए हैं, कपड़ा फटा हुआ है, जिसके हाथ में सिर्फ एक प्याला है, एक कूसा है, जिसके हाथ में सिर्फ एक लाठी, एक डंडा है। हजरत उमर सवाल करते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन सवाल करते हैं, अरे उमर बिन साद, तूने कुछ नहीं किया, मैंने तुझे चीफ मिनिस्टर बनाया था, मैंने तुम्हें सीएम बनाया था, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दिया था, क्या तूने कुछ नहीं किया, क्या तूने माल नहीं जमा किया। हजरत उमर बिन साद कहते हैं,
आप कहते हैं वक्त का सीएम है, सोच लो अगर आज किसी को सीएम बना दिया जाए, पूरे का पूरा घपला चल रहा है, पूरे का पूरा घपला चल रहा है। अरे कोई सभासद बन जाता है, इनका खा रहा है, उनका खा रहा है, इधर से खा रहा। हमारे दरमियान किसी के पास अगर दौलत आ जाती है तो हमारे लिबास ऐसे हो जाते हैं, हमारा पहनावा ऐसे हो जाता है, हमारा उठना बैठना ऐसे हो जाता है, ऐसे लगता है हमने कुरान की तालीम को नहीं पढ़ा है, ऐसे लगता है हमने उमर की अदालत को नहीं पढ़ा है, ऐसा लगता है हमने रसूलुल्लाह की सीरत को नहीं पढ़ा है। हजरात गिरामी मेरे आका की हदीस है, हमने सिर्फ चोले बदले हैं, अपने कपड़ों को बदला है, अपनी नीयतों को नहीं बदला है। अरे सुनो, मेरे आका की हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं सुनो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कपड़ों को नहीं देखता है, तुम्हारे माल को नहीं देखता है, तुम्हारी दौलतों को नहीं देखता है, तुम्हारे सर को बर को नहीं देखता है। अल्लाह तबारक व तआला यंजुरु इला अमालिकुम, तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है, इला नियतिकुम, तुम्हारे नियतों को देखता है। जैसी तुम्हारी नियत होगी वैसी बरकत होगी। हजरात गिरामी सुनिए, वो गवर्नर हाजिर होता है, अरे कपड़े जो है ढंग के नहीं है, उस पर पेबंद लगे हुए हैं, 70 पेबंद लगे हुए हैं, उससे ज्यादा पेबंद लगे हुए हैं, और सिर्फ हाथ में एक डंडा है, एक लाठी है, एक प्याला है। कहते हैं खलीफतुल मुस्लिमीन मुझे क्या गरज है, दुनिया से मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये डंडा है जिसके सहारे में चल लिया करता हूँ, कपड़ा में पहना हो, ये कूजा ये प्याला है, इससे मैं पानी पी लिया करता हूँ, लोगों ने दिया तो खा लिया करता हूँ, नहीं तो सब्र किया करता हूँ, वरना अल्लाह का शुक्र अदा किया करता हूँ। हजरत उमर हैरान रह गए, अरे जमाने वालों सुनो, ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सीएम की बात कर रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, एक गवर्नर की बात कर रहा हूँ, जिसके पास पावर थी, चाहता तो बहुत सारा बैंक बैलेंस कर सकता था, चाहता तो बहुत सारे खादिम रख सकते थे, चाहता तो बहुत सारा माल ज़र रख सकता था, चाहता तो बहुत सारी सवारियां ला सकता था, चाहता तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकता था। लेकिन हजरत उमर के दौर का सीएम है, हजरत उमर के दौर का गवर्नर है, इसलिए हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। आपका रौब इतना है, आपका दबदबा इतना है कि वक्त का सीएम भी जुरात नहीं करता है शरीयत से आगे बढ़ने की। आपका दबदबा इतना है, आपका खौफ इतना है, फिर भी वो सहाबी रसूल थे। यूं तो हर सहाबी मुत्तकी है, हर सहाबी परहेजगार है। सुने भवानीगंज वालों सुनो, गौर से सुनो, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप यहां पर बैठे हैं, अरे वक्त को बदलो, वक्त को बदलो, अपने आप को बदलो, अपने लिबास को नहीं, अपनी नियतों को बदलो, अपने किरदार को बदलो। आओ देखो हजरत उमर का की अदालत थी, हजरत उमर का क्या इंसाफ था। आप देखिए हजरत गिरामी, हजरत उमर उनसे कहते हैं चल ठीक है, हिम्स में क्या तुझे माल देने वाला कोई नहीं था, हिम्स में क्या तुझे कोई घर देने वाला नहीं था, कोई प्लॉट देने वाला नहीं था, कोई जमीन देने वाला नहीं था। आप कहते हैं उमर मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। उमर कहते हैं चल अच्छा ठीक है, हो सकता है कोई वहां पर ना रहा हो, मैं तुझे दूसरे शहर का सीएम बना देता हूं, मैं तुझे दूसरे स्टेट का सीएम बना देता हूं। आप कहते हैं जवाब सुनिए, आज अगर किसी को मनसब मिले, ऐसा हो नहीं सकता है, वो भी सीएम की पोस्ट है, कोई आम पोस्ट नहीं है, वो ना ले। आप कहते हैं सुनिए सहाबी रसूल क्या कहते हैं, हजरत उमर का जमाना क्या है, मैं यूं ही नहीं बयान कर रहा हूं। हजरत उमर पर एतराज करने वाले, और सुनो, दुनिया के पास ऐसा हाकिम नहीं है, दुनिया के पास ऐसी अदालत नहीं मौजूद है, किसी के पास ऐसा कानून नहीं मौजूद है, किसी के दौर में ऐसा सीएम नहीं गुजरा है, किसी के दौर में ऐसा हाकिम नहीं गुजरा है जिस जैसा हाकिम हजरत उमर के दौर में गुजरा है, जैसा हजरत उमर ने हुकूमत की है। हजरत गिरामी आप तवज्जो सुनिएगा, गौर सुनिएगा। हजरत उमर ने कहा कि ठीक है जाओ, आपने जवाब दिया था, सहाबी रसूल ने जवाब दिया था, खलीफतुल मुस्लिमीन मुझे अब किसी दौर का सीएम नहीं बनना है, मुझे कहीं पर नहीं जाना है, मुझसे एक गलती हो गई है, मैं उसी गलती की माफी चाहता हूँ, मैं उसी गलती से अपने रब से माफी चाहना चाहता हूँ, मैं अकेले जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रब की इबादत करना चाहता हूँ, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, मैं अपनी कुटिया में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, मुझसे क्या गलती हुई हो। हकीकत में वो गलती भी नहीं है, अगर देखा जाए तो गलती भी नहीं है, लेकिन सहाबी रसूल है। सुनिए सुनिए, आप कहते हैं उमर ने पूछा बता तेरी गलती क्या है। आपने कहा मुझसे गलती ये हुई है, मैंने एक ईसाई से कहा है अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे रुसवा करे। अरे ईसाई कौन है? काफिर है। ईसाई कौन है? जो मुसलमान नहीं है। ईसाई कौन है? जो अल्लाह को नहीं मानता है। ईसाई कौन है? जो रसूलुल्लाह को नहीं मानता है। ईसाई कौन है? जो नबी की शरीयत को नहीं मानता है। ईसाई कौन है? जो किसी को नहीं मानता है, वो काफिर है। और सहाबी रसूल एक काफिर को कह रहे हैं अल्लाह तुझे गारत करे, अल्लाह तुझे रुसवा करे। हजरात गिरामी, अरे इस्लाम का तरीका ये था, इस्लाम ने ये बताया था, इस्लाम ने कभी दुश्मनी नहीं फैलाई है। अरे आज नफरत फैलाने वाले मुसलमान के नाम पर सुन ले, ये सहाबी कह रहा है, मेरे नबी का सहाबी कह रहा है, अरे मैंने ये कह दिया है एक काफिर को मुझसे
गलती हो गई है, ये कहने की बुनियाद पर अपनी सीएम की पोस्ट छोड़ रहा है, इतना बड़ा मनसब छोड़ रहा है, मुझे नहीं करना है। आज हमारे हालात क्या है? आज हम शिकवा करते हैं कि हमसे लोग दूर भागते हैं, काफिर भी दूर भागते हैं, हमसे मुसलमान भी दूर भागता है। सुनो, वजह सिर्फ यही है कि हमारे अंदर से इस्लाम की तालीम निकल चुकी है, हमारे अंदर से वो अमल खत्म हो चुका है जो अमल रसूलुल्लाह ने दिया था, हमने अमल छोड़ दिया है। कसम खुदा की, अगर आज भी हम जो सुन रहे हैं, रिवायतें सुन रहे हैं, अगर जिस दीन को फैलाने के लिए, जिस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में गए थे, जिस दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना पेश किया, आज हमारी कौम के नौजवान उसी शरीयत का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं। आज हमारी कौम के नौजवान इसी मुहर्रम शरीफ की सरजमीन पर, इसी मुहर्रम शरीफ के महीने में उसी शरीयत का मजाक उड़ाते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, चौराहे पर बैठे हुए होते हैं, एक एयरफोन इसके कान में होता है, एक एयरफोन उसके कान में होता है, नंगी नंगी गलत गलत वीडियोस देखते हैं, गलत तस्वीर बनाते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अरे सुनो, गुलाम हुसैन का नारा लगाने वालों, गुलाम हुसैन का, गुलाम रसूल का नारा लगाने वालों, तवज्जो सुनना, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। नारा लगाने से काम नहीं चलता। इसी मुहर्रम में हुसैन का नारा लगाते हो, इसी मुहर्रम में हुसैन जिस दीन को बचाने के लिए गए थे, हुसैन ने जिस दीन के लिए सारा खानदान लुटा दिया, आप उसी शरीयत का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी शर्म मर गई है, आपकी हया मर गई है, आपका ईमान कमजोर हो गया है। अरे सुने, हजरत उमर ने उस गवर्नर से कहा, हजरत उमर ने उस सीएम से कहा, ठीक है आप जा सकते हैं। आप चले गए। उसके बाद हजरत उमर ने कहा, अरे सुनो, अपने हाकिम से कहा, अपने दरबान से कहा, अपने दरबान से कहा कि सुन, तू इसके पीछे जा और 3 दिन तक देखना, अगर वाकई में परहेजगार है, अगर वाकई में ये मुत्तकी है। वैसे तो मेरे नबी का सहाबी मुत्तकी हुआ करता है, लेकिन ये उमर की बारगाह है, ये उमर की कचहरी है, इतनी जल्दी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। आपने कहा 3 दिन तक देखना और 100 अशरफिया दी, 100 दीनार दिए, 100 दीनार दिए, सोने के सिक्के दिए। कहा 3 दिन देखने के बाद अगर जैसा ये बता रहा है वाकई में वैसा है, इसको 100 अशरफिया देना, ये सोने के सिक्के दे देना। वो दरबान जाता है, आपका रहना सहना देखने लगता है। तवज्जो चाहता हूँ भवानीगंज के सुन्नी मुसलमानों, अपने आप को मुसलमान का दावा करने वालों, अरे सुनो सुनो, क्या दर्श दिया है हजरत उमर ने कौम को। उसके जमाने में सीएम कैसे रहा करते थे, बड़े बड़े गवर्नर कैसे रहा करते थे। आज हमारे कौम का कोई थोड़ा सा पैसे वाला हो जाए तो गरीबों की मदद नहीं करता है, मिस्कीनों की मदद नहीं करता है। अरे सुनो सुनो, गौर से सुनो भवानीगंज वालों, गरीबों को बुला भला कहता है, उनका मजाक उड़ाता है। सुनो, हजरत उमर क्या दर्श दे रहे हैं, क्या दर्श दे रहे हैं, आप सुनिएगा। आपने जब वो दीनार दिया था, जो अशरफी दी थी, वो खादिम जाता है और 3 दिन तक देखता है। वक्त का जो सीएम था, हिम्स का जो चीफ मिनिस्टर था, जो गवर्नर था, अब मनसब छोड़ चुका है, वो पोस्ट छोड़ चुका है और आता है, अपनी कुटिया में रहता है, दिन भर रोजा रखता है। दिन भर रोजा रखने के बाद इफ्तारी करता है। इफ्तारी क्या करता है? हम लोग इफ्तारी तरह तरह की करते हैं। कितने लोग हमारे दरमियान ऐसे रहते हैं जो इफ्तारी के लिए ही रोजा रखते हैं। हजरात गिरामी सुनिए, इफ्तारी क्या थी? पानी से इफ्तारी करता है, एक रोटी जो की खाते हैं और उस पर सिर्फ जैतून लगा करके खाते हैं। ये रहना सहना आपका है। वक्त का सीएम था, वक्त का गवर्नर था, ये रहना सहना देख करके और देखते हैं रात के पिछले पहर आप उठते हैं, रब की बारगाह में आप रोते हैं, आंसू बहाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मौला तू मुझे माफ कर दे, मौला तेरी रहमत बहुत करीब है, मौला तू रहीम और गफीर है, गफूर है, मौला तू रहमान और रहीम है, मुझे माफ कर दे, मुझसे जो गलती हुई है। हजरत गिरामी 3 दिन तक जब हजरत उमर के दरबान ने उस हाकिम को देखा है, उस गवर्नर को देखा है, उस सहाबी रसूल को देखा है कि आपका रहना सहना ऐसा है, आपने उस हाकिम, उस दरबान ने 100 अशरफी दे दी। 100 अशरफी देने के बाद कहा खलीफतुल मुस्लिमीन ने भेजाया है, खलीफतुल मुस्लिमीन ने भेजाया है। अब सुनिए, उन्होंने 100 दीनार लिए नहीं, वो 100 दीनार रखे नहीं, आपने सिर्फ 5 दीनार लिए और 95 दीनार आपने मदीने में गरीबों में तकसीम कर दिया, मदीने के गरीबों पर लुटा दिया। अरे सुनो, अब यहां से मेरा जुमला नोट करना, यहां से जुमला मेरा नोट करना। लुटाने के बाद आपने सोचा, आपने कहा अल्लाह फिर हजरत उमर से मेरी मुलाकात ना करे। ये इसलिए कह रहे हैं मुलाकात ना हो ताकि उमर मुझे फिर क्यों सीएम ना बना दे, ताकि उमर फिर मुझे गवर्नर ना बना दे। लेकिन एक दफा मुलाकात हो जाती है। हजरत उमर कहते हैं, ये बताओ, जो मैंने तुझे 100 अशरफी दी थी, 100 दीनार दिया था, उसका तूने क्या किया? जुमला सुनिएगा उस सीएम का जो
खुदा छोड़ चुका है। उससे एक गलती हुई थी, छोटी गलती हुई है, आज हमसे गलतियां हो रही है, सुबह शाम गलतियां हो रही है, गुनाहों पे गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हमारे सर पर जूं नहीं रेंगती है, हम इतने गुनाह करते जा रहे हैं। सुनिए सहाबी रसूल कहते हैं, वो दिनार मैंने 5 रख लिए, 95 मैंने अल्लाह के बैंक में जमा करा दिए हैं। अल्लाह का बैंक कौन है? यानी मैंने गरीबों पर लुटा दिया है, मैंने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। पता चला जो माल अपने ऊपर खर्च किया जाए उसका कोई बदला नहीं होता है, और जो माल गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, जो माल अल्लाह के बारगाह में खर्च कर दिया जाए, जो माल मिसाल के तौर पर जिक्र शुहदाए करबला में खर्च कर दिया जाए, जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया जाए, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सुनने वाले उमर है, वो भी सहाबी है, बताने वाले भी सहाबी है। उमर कहते हैं ठीक है, क्या किया? उन्होंने कहा 95 सिक्के मैंने अल्लाह के बैंक में जमा करा दिए। कहने का मतलब यह है जो माल अपने ऊपर खर्च किया जाए उसका कोई बदला नहीं होता। आपने फरमाया था जो मैंने जमा कराए हैं उसका बदला मैं हश्र के दिन अपने खुदा से लूंगा, और अल्लाह से उम्मीद है मुझे बदला जरूर देगा, इसलिए कि वादा खिलाफी अल्लाह नहीं करता है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, उसका फरमान है, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता है। गोया कि सहाबी रसूल बता रहे हैं जो माल अपने ऊपर खर्च किया जाए उसका कोई बदला नहीं है। आपने अपनी जात पर खर्च किया होगा, आपने अपनी औलाद पर खर्च किया होगा, आपने अपने मकान पर खर्च किया होगा, आपने अपनी जमीन पर खर्च की होगी, लेकिन जो माल आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, जो माल आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिया, जो माल आपने गरीबों में बांट दिया, मिस्कीनों पर दे दिया, सुनिए वही अल्लाह के बैंक में जमा होता है। कल मैदान महशर में अल्लाह उनके माल का बदला अता फरमाएगा जो भी अपने माल को दिल खोल करके इस जिक्र शुहदाए करबला में खर्च करते हुए आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात तो बहुत कुछ की थी, उमर की शख्सियत ऐसी है तो कसम खुदा की बताऊं फिर फजर हो जाएगी, आप घबरा जाएंगे, मैं भी घबरा जाऊंगा। फजाइल इतने हैं कि जिब्रील ने कहा था 1000 साल कोई लिखने पे आए तो नहीं लिख सकता है। हम क्या बयान, उमर का दौर वो था, मैं बताता और भी बहुत कुछ, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आएगा मैं बताता जाऊंगा, कोशिश करूंगा। ज़रूरत है आज हमें उमर के सीरत पर चलने की। उमर को यूं ही ना समझो, उमर जैसा कोई हाकिम नहीं ला सकता है, उमर जैसी कोई अदालत नहीं ला सकता है। उमर ने ढंग सिखाया कैसे हुकूमत की जाए, उमर ने बताया ये पुलिस ये उन्हीं के कायम करदा चीज़ है, ये फौज आप देख रहे हैं, ये डाक आप देख रहे हैं, ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये पुलिस स्टेशन देख रहे हैं, ये सरहदें देख रहे हैं, ये बॉर्डर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें दुनिया नहीं जानती थी, उमर ने बताया। उमर ने बताया था हज़रात गिरामी, वो पूरी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, पूरी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। जब मैं ये पढ़ता हूँ पूरी दुनिया का हुक्मरान था, जब मैं सोचता हूँ 22 लाख मुरब्बा मील पर उसकी हुकूमत थी, उसके नाम से कुफ्र लर्जा होता था, उसके नाम का सिक्का चलता था, तो मैं कहता हूँ वो पूरी दुनिया का हुक्मरान था। जब मैं देखता हूँ कि उसके नाम से शैतान रास्ता काट दिया करते थे, उसके शैतान से उसके उमर के रास्ते से काफिर थरथराया जाया करते थे, 22 लाख मुरब्बा मील पर इसका जलाल फैला हुआ है, तब मैं कहता हूँ पूरी दुनिया का हुक्मरान था। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ देखता हूँ वो बुराओं और ज़ईफों की मदद किया करता था, ज़ईफों और मिस्कीनों के माल को अपने कंधे पर उठाया करता था, अपने गुलाम को अपनी सवारी पर सवार किया करता था, तब मैं कहता हूँ हुक्मरान भी मगर वो पूरी दुनिया का हुक्मरान था, वो हुक्मरान भी मगर कहाँ था। वो कोई ऐसा बादशाह किसी के पास तो लाए उमर जैसे मिसाल नहीं ला सकता। हजरात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है जो कुछ मैंने बयान किया सबसे पहले मुझको, उसके बाद तमामी हजरात को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।